नमस्कार, मैं संजीव चौहान एनसीडीएक्स और सेबी की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट स्लाइड के अंदर, ये वीक हम लोग एज ए वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो स्पेशली जो भी इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, उनके अंदर एक मार्केट को लेकर जो भी अवेयरनेस है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अग्रेसिवली इस वीक के अंदर काफ़ी सारे वेबिनार इस तरह के करेंगे। उसी श्रेणी के अंदर आज का जो हमने वेबिनार रखा है, वो कमोडिटी इंडेक्सेस के ऊपर रखा है। आज सेबी के जयपुर ऑफिस से श्री नीतीश जी भाटी भी हैं, जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको हैंड ओवर करूंगा। इनिशियली वो आपको कुछ इस मार्केट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, फिर बाद में मैं आपको कमोडिटी इंडेक्सेस के ऊपर डिटेल में बताना चाहूंगा। तो नीतीश जी, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ सेशन। Thank you, Mr. Sanjeev. Welcome to all the investors. On behalf of SEBI, I welcome all the investors for this joint webinar of SEBI and NCDX. As it is already told by Mr. Sanjeev, this week we are celebrating World Investor Week, and this we are celebrating since 2017. It's a part of our IOSCO membership. SEBI is the member of World Organization of Security Commission, which is IOSCO, and as a joint initiative, we celebrate this in every October month, and this year we are celebrating in the month of November due to pandemic. In this investor week, we take an opportunity to meet all the investors directly, indirectly, through the exchanges, through the regional seminar, investor associations, and through visit to SEBI and other programs. And this is a platform where we can interact with the investor directly. We try to understand their issues and their understanding about the market, and try to improve the market as much as possible. As you are aware, this webinar is jointly organized by NCDX, which is a commodity exchange, and SEBI being a regulator of securities market and also take care of commodity market. I will like to address all the investors to take an informed investment decision, whether it is a securities market or commodity market. As you are aware, SEBI has been handed over commodity market related work in 2015 with the merger of FMC, which is Forward Market Commission. And we, over a period of time, we have done lots of development in the commodity market to make commodity market more more investor friendly, and more platform for hazing and the development of the market, where all the participants are able to get the fair value of the commodities, and also the people are able to haze their risk in the commodity trading or production or whatever manner they are associated with. We have brought new products in the market, in a commodity market, like option trading in the commodity, which is a new initiative SEBI has taken. Apart from that, we have allowed mutual fund AIF also to invest in commodity. So these are the reforms that we have done recently. One of the reform is also commodity index, on which NCDX is today talking about. Commodity index in detail will be speak by Mr. Sanjeev, but I will like to tell you, like we securities market are normal growth, BL or bull, we have seen by Sensex or Nifty, which is securities market index indicator. In a similar manner, we wish to have a commodity index in the Indian securities or commodities market, like Indian securities market. And for with that thought process, we have allowed exchanges to launch commodity index, and it is also useful for the people who invest in a commodity to have a portfolio similar like commodity index, like we do index trading or index mutual fund in securities market.
So with this, I will not take much time, and I will request Mr. Sanjeev to straight go on the topic. And if there are any questions, we are always welcome. You can write into the chat box, and we can discuss in the end. Thank you very much, and wish you uh, all the best for this webinar. And congratulations to all the investors and being with SEBI and with the exchanges and being an investor in Indian securities market. Thank you. थैंक यू नीतीश जी। तो जैसे कि नीतीश जी ने भी बताया कि ओवरऑल पूरा एक सेबी के बारे में और सेबी ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, वो सब चीज़ें भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा इस पीपीटी के माध्यम से। और मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन विद कम्युनिटी इंडाइसिस। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा पहले ओवरऑल क्या ओवरऑल व्यू है जो कम्युनिटी डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम का, उससे मैं स्टार्ट करता हुआ इसको लेके जाऊंगा कम्युनिटी इंडाइसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखें कि इंडिया के अंदर जो कम्युनिटी एक्सचेंजेस का उनका जो एवोल्यूशन हुआ था वो 19th सेंचुरी में हुआ था विद बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के साथ में। और इसी सिलसिले में कंटिन्यूटी के अंदर सन 1910 से 30 के बीच में इसके अंदर और भी कम्युनिटीज जुड़ी जिनके अंदर ऑयल सीड्स और रोज जूट थे। और इसी श्रृंखला के अंदर ईयर 1953 के अंदर इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एस्टेब्लिश किया था जो इस बाजार को रेगुलेट कर रहा था कम्युनिटी एक्सचेंजेस को। और टिल द टाइम 20th सेंचुरी के अंदर टाइम के ऊपर इसके ऊपर मतलब बाजार के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा दिए गए, फिर रिज्यूम कर दिए गए। बट लेटर ऑन 2001 के अंदर गवर्नमेंट ने वो जो बैन था वो एक्सटेंड करके और 3 नेशनल लेवल के कम्युनिटी एक्सचेंजेस को परमिशन दी ट्रेड फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में, जिन्होंने दिसंबर 2003 के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। और सितंबर 2015 के अंदर सेबी ने एज ए रेगुलेटर एफएमसी से ये टेक ओवर ले लिया। तो सितंबर 2015 के बाद से सेबी इस बाजार का रेगुलेटर है जो टिल टाइम तक कभी कंटिन्यू है। अब अगर अपन स्ट्रक्चर देखें इसका कम्युनिटी एक्सचेंजेस का इंडिया के अंदर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो सारा देखता है। उनके अंडर में है जैसे कि सेबी, और सेबी के अंडर में आज नेशनल लेवल के 5 एक्सचेंजेस हैं जिसमें एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी एंड बीएससी है। और टोटल अगर अपन देखें तो 91 कमोडिटीज परमिटेड है ट्रेडिंग के लिए इस बाजार में। और ये स्टेप्स देखिए जो सेबी ने जब से टेक ओवर लिया है एफएमसी से क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो सितंबर 2015 में सेबी ने टेक ओवर लिया था एफएमसी से, और जून 2017 के अंदर सेबी ने कमोडिटीज के अंदर ऑप्शंस की ट्रेडिंग को परमिट किया था। और उसी साल सेबी ने से एएफ को भी परमिशन दी थी ट्रेडिंग करने के लिए। और सितंबर 2017 के अंदर सेबी ने जो इक्विटी और कमोडिटी की जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनके इंटीग्रेशन को परमिशन दी थी, जिसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारी जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं उन्होंने एक कंपोजिट मेंबरशिप के अंदर ही अपने जो ब्रोकिंग बिजनेस है उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा जो बैंक सब्सिडरीज है उनको भी अलाउ किया कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट की ट्रेडिंग के लिए। और बैंक भी एज ए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। और सितंबर 2018 के अंदर एफपीआई को भी परमिशन मिली जो भी वो अपना कमोडिटीज का जो एक्सपोजर है उसको हेज कर सके उसके लिए। और मार्च 2019 के अंदर म्यूचुअल फंड और पीएमएस की सर्विसेज को भी अलाउ किया गया। और जून 2019 के अंदर इंडिया के अंदर जो कमोडिटी इंडेक्सेस है उनको भी परमिशन दी गई सेबी की तरफ से। तो ये रिसेंटली जो सेबी की तरफ से स्टेप्स लिए गए थे इस बाजार की ग्रोथ के लिए वो मैंने आपको बताए हैं। अब अगर अपन बात करें कि कौन कौन सी कमोडिटीज है मेजरली जो लिस्टेड है, तो उसमें हम देख सकते हैं सीरियल एंड पल्सेस के अंदर बाजरा है, बार्ले है, चना है, मेज है, वीट है, मूंग है और पैडी है। और स्पाइसेस में देखें तो कोरिएंडर, जीरा एंड टर्मरिक है। और फाइबर में देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक है, शंकर कपास है और 29 mm कॉटन है। और ग्वार कॉम्प्लेक्स में देखें तो ग्वार सीड एंड ग्वार गम। एंड ऑयल एंड ऑयल सीड्स में देखें तो सोयाबीन, सोया रिफाइन, मस्टर्ड सीड, कैस्टर्ड सीड और
क्रूड पाम ऑयल एंड सेसम सीड, ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है आज की डेट में ट्रेडिंग के लिए। और हमने ये जो पूरी जो दिखाई आपको बास्केट, इसी में से ये कुछ सेलेक्टेड कमोडिटीज को लेके कमोडिटी का इंडेक्सेस प्रिपेयर किया है, जो मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगा। अब एक छोटा सा एक मैंने कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिखाया है कि कमोडिटी और फाइनेंशियल जो डेरिवेटिव्स है उसमें क्या बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स का अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो भी सेटलमेंट होता है वो एक्चुअल डिलीवरीज पे होता है, जबकि फाइनेंशियल सेटलमेंट जो भी रहता है वो ओनली कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। कमोडिटीज के अंदर देखें तो क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंशिएट एग्जिस्ट करता है, जबकि फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट है या डेरिवेटिव्स है उनके अंदर इस टाइप का कोई भी डिफरेंस कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। और कमोडिटीज को अगर अपन ट्रेड कर रहे हैं तो एक उसकी होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है, और अगर डिलीवरीज ट्रेड कर रहे हैं तो एक असाइंग चार्जेस है, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, ये सब इन्वॉल्व रहती है जो उसके प्राइस के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है। और वही चीज अगर अपन फाइनेंशियल मार्केट में देखें तो होल्डिंग कॉस्ट नॉर्मली ओनली जो भी जिसमें भी अपने इन्वेस्ट किया है उसकी एक इंटरेस्ट कॉस्ट आती है। और कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को जो फिजिकल मार्केट है सीजनल बेसिस के ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कैश मार्केट है जो थ्रू आउट द ईयर एक ही पैटर्न के ऊपर चलता है। फैक्टर अगर अपन देखें कौन कौन से इम्पैक्ट डालते हैं दोनों के ऊपर, तो कमोडिटीज मार्केट के अंदर बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे बेसिकली चलता है ये। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे जो भी अपन कमोडिटीज गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर अपने को परमिट करती है क्वांटिटी वाइज या ड्यूटी बेस पे अपन जो भी देख लें, जैसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो थर्ड पॉइंट है वो इम्पैक्ट डालते हैं। सेम वे के अंदर इक्विटी के अंदर ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक जो कंडीशंस रहती हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं, और परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी जो पर्टिकुलर कंपनीज लिस्टेड रहती हैं उनकी क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसके प्राइसेस के ऊपर। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर आता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे। और एक ही अपन देखें भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी ट्रेड करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या मतलब जो रिस्क है जो एसोसिएटेड है, तो सबसे बड़ा जो मतलब कंसर्न आता है जनरली वो प्रोडक्शन रिस्क का आता है कि भाई जो भी क्रॉप फील्ड में हो रही है उसकी क्या यील्ड बैठेगी, उसके ऊपर क्या वेदर की कंडीशंस रहेंगी, और कोई सीजनल उसके ऊपर कोई डिजीज वगैरह का कोई इम्पैक्ट या नहीं हो, तो ये सब चीजें उसके प्राइसेस पे भी फैक्टर डालती हैं उसके प्रोडक्शन के साथ ही। प्लस मार्केट रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहता है, क्वांटिटीज जो भी रहती है। फाइनेंशियल रिस्क जो भी है वो भी इसमें एक रहता है कि फॉर एग्जांपल जो भी फार्मर क्रॉप की सोइंग कर रहा है वो अगर सपोज टू बी टाइमली अगर प्रोडक्शन में नहीं आती है तो हो सकता है कि उसका रिस्क उस फार्मर के ऊपर आए, तो वो एक फाइनेंशियल रिस्क की तरफ लेके जा सकता है उसको। तीसरा लीगल और फोर्थ लीगल और एनवायरमेंटल रिस्क भी कंसर्न रहता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर। और ह्यूमन रिसोर्स रिस्क वो भी एक कंसर्न है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर। ये एक पिछले 10 साल का एनुअलाइज वोलेटिलिटी का एक वो चार्ट में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि तकरीबन 20 से 30% की एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी रहती है जो भी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे मेजरली जो ट्रेड हो रहा है कमोडिटी उनकी। अब अगर अपन बात करें कि एक्सचेंज ट्रेडेड कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं, तो आज की डेट में 3 तरह के प्रोडक्ट हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, फ्यूचर्स, ऑप्शन इन गुड्स एंड इंडाइसेस। तो जिसके अंदर मैं इंडाइसेस के ऊपर इन डिटेल आपसे अभी बात करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उसको हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन किया या क्या रहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो की फीचर्स हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो हम लोगों ने 5-6 पॉइंट जो बेसिकली लिए हैं जिसके ऊपर हर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट का साइज, क्या साइज लेते हैं हम लोग जिसके ऊपर लोग ट्रेड करते हैं मार्केट में, प्लस एक मार्जिन अमाउंट लगता है जो भी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, और डेली बेसिस पे जो भी मूवमेंट आता है उसका एंड ऑफ द डे जो सेटलमेंट होता है तो M2M आता है, वो इन्वॉल्व रहता है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओपन इंटरेस्ट रहता है जो भी ट्रेड करते हैं और वो एक्सपायरी तक जाता है, तो टिल द टाइम तक जो ओपन पोजीशन रहती है उसको ओपन इंटरेस्ट में काउंट करते हैं। हर कमोडिटी का एक बेसिस सेंटर रहता है जहाँ के बेसिस के ऊपर उसके प्राइस रिफ्लेक्ट होते हैं और सेटलमेंट होता है। डिलीवरीज का कंसेप्ट रहता है, और जो भी प्रोडक्ट एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहा है उसकी एक हमने एक्सपायरी डेट रखी है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मंथ ऑन मंथ उसकी मंथली की एक्सपायरी रहती है इसके अंदर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम डिजाइन करते हैं फीचर्स के अंदर,
तो ये पैरामीटर हम लोग ध्यान में रखकर ही उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कमोडिटी इंडाइसिस की। तो कमोडिटी इंडाइसिस के अंदर जो एनसीडीएक्स ने लॉन्च किया है वो एग्रीडेक्स के नाम से लॉन्च किया है इंडिया में। जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में हम देखें बीएससी के ऊपर सेंसेक्स है और एनएससी के अंदर निफ्टी चलती है, उसी तरह एनसीडीएक्स के अंदर एग्रीडेक्स के नाम से ये कमोडिटी इंडाइसिस है। और वो इंडिया का फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर कमोडिटीज का इंडेक्सिस है जो टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज की परफॉर्मेंस को शो करता है। ये एग्रीडेक्स के कुछ की फीचर्स हैं जो हमने डिजाइन किया है, उसके क्या मेन की फीचर्स हैं तो हम देखेंगे। इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है जैसे कि कंपोनेंट, हम लोगों ने जो भी इसके अंदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज रखी है उसका जो क्राइटेरिया रखा है उनका, तो इसके अंदर बेसिकली 80% वो कमोडिटीज है जिनका टर्नओवर 75 करोड़ से ऊपर रहा है, ठीक है। और 20% कमोडिटीज वो है जिनका वॉल्यूम अगर 75 करोड़ से कम रहा है। तो इस तरीके से हमने जो कमोडिटी का चूज किया है इस इंडेक्स के लिए, उनका जो चूज करने का क्राइटेरिया एक ये है। सेकंड है उसका जो वैल्यू वेटेज है, तो हम लोगों ने उसका प्रोडक्शन एज वेल जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रही है उसको दोनों को 50-50% का वेटेज दिया है। 50% प्रोडक्शन को और 50% वेटेज उसके एक्सचेंज ट्रेड को। और थर्ड है फ्लोर एंड कैपिंग, जो भी कमोडिटीज यहाँ पे ट्रेड हो रही है उनकी हमने एक सर्टेन लिमिट डिसाइड की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो जो पर्टिकुलर किसी एक कमोडिटी का वेटेज हो सकता है इस इंडेक्स के अंदर वो हायर साइड के अंदर 20% रहेगा और लोअर साइड में बात करूं तो वो 3% का रहेगा। पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स की बात करूं जैसे कि एक सोया कॉम्प्लेक्स या ग्वार कॉम्प्लेक्स या स्पाइसेस, तो पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स का जो वेटेज रहेगा हायर साइड के अंदर वो रहेगा 40%। और ये जो भी हमारा इंडेक्स है इसको हम लोग 1 अप्रैल को रीबैलेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसके जो वेटेज रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर साल जो प्रोडक्शन वेटेज है, प्रोडक्शन नंबर्स हैं वो अलग आएंगे, एक्सचेंज के ऊपर जो ट्रेड हो रहा है वो नंबर्स अलग रहते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर हर साल ये 1 अप्रैल को रीबैलेंस होता है। और जो भी इंडेक्स हमारे यहाँ पे लॉन्च है वो हर महीने के फर्स्ट 3 डेज को रोल ओवर होता है, ठीक है। और कमोडिटीज का जो सिलेक्शन किया गया है वो हमने बहुत अपसाइड और डाउन स्ट्रीम कमोडिटीज को ध्यान में रखकर इसमें किया गया है, जिसके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। तो ये एक पूरा हम लोगों ने जो कमोडिटीज का है एक बास्केट या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बास्केट में से हम लोगों ने कमोडिटी चूज की है जिसके अंदर ट्रेडिंग अवेलेबल है आज की डेट के अंदर। तो आप देखेंगे कि काफी डाइवर्सिफाई रहता है यहाँ पे जो भी कमोडिटी इंडेक्सेस का वो है। तो फर्स्ट जैसे सॉफ्ट इन द शुगर सॉफ्ट कैटेगरी के हम लोगों ने डिफाइन की हुई है। एडिबल ऑयल्स की बात करें तो उसके अंदर आयरन सीड, सोयाबीन, सोया रिफाइंड एंड क्रूड पाम ऑयल है, जो जिसमें से ये जो 3 कमोडिटीज हैं वो सोया ऑयल और सोयाबीन और आयरन सीड इंडेसिस का पार्ट है। पल्सेस में देखें तो चना और मूंग है, इसमें से चना इंडेसिस का एक पार्ट है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखें तो ग्वार सीड, ग्वारगम और कैस्टर सीड, ये तीनों प्रोडक्ट इंडेसिस के पार्ट है। और ग्रेन्स में देखें तो व्हीट, बार्ले, मेज, पैडी एंड बाजरा, क्योंकि इनका वॉल्यूम काफी कम है तो इसमें से भी कोई भी कमोडिटी है जो इंडेसिस का पार्ट नहीं है। और कॉटन कॉम्प्लेक्स में देखें तो कॉटन सीड ऑयल के, कपास और कॉटन, इसमें से देखें तो कॉटन सीड ऑयल के का पार्टिसिपेशन रहता है इंडेसिस के अंदर। एंड लास्ट है स्पाइसेस, टर्मरिक, धनिया एंड जीरा, जिसमें से धनिया और जीरा को हम लोगों ने इंडेसिस में इंक्लूड किया। तो इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो अपने पास में 6 से 7 बास्केट है कमोडिटीज की अलग अलग, जिनको कम मिलाकर हम लोगों ने इस इंडेक्सेस को प्रिपेयर किया। अब जो हमारा इंडेक्स है अगर उसका वेटेज वाइज देखेंगे कि किस कमोडिटीज का कितना वेटेज है तो वो हम देख सकते हैं स्लाइड के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट शेयर है, वेटेज है, वो है सोयाबीन का, जो अराउंड है 18.43 का शेयर रखता है इसके अंदर ओवरऑल। और नेक्स्ट है सोया ऑयल, अगर इसी मतलब बास्केट की मैं बात करूं तो वो है 8.14 का। और कैस्टर सीड का इसमें वेटेज है अराउंड 10.09% का। एंड चने का अराउंड है 17.81, जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज रखता है इस इंडेक्स के अंदर। देन फोर्थ पे है कोको, जिसका अराउंड वेटेज है 8.69 का। देन कोरिएंडर आता है 3.22 एंड गुआरगम इज अराउंड 6.45 एंड गुआर सीड इज 11.16 एंड जीरा देखिए तो 3.89 का वेटेज है एंड सीड इज अराउंड
12.12। तो ये टोटल करके 100% इसका वेटेज मतलब रहता है, जिसमें से अगर अपन देखें जो हाईएस्ट वेटेज है तो ओवरऑल सॉरी ऑयल कॉम्प्लेक्स का इसमें रहता है। इनका मिलाते हैं तो अराउंड 40% के आसपास इसका वेटेज है। ये सिंस अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2020 तक का एक डेटा हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि भाई इसकी रिटर्न और वोलेटिलिटी हिस्टोरिकली क्या रही है। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर कि अप्रैल 2016 से मंथ टू मंथ मैंने यहाँ पे शो किया है कि किस महीने इंडेक्स का जो रिटर्न और वोलेटिलिटी रही है वो किस डायरेक्शन में रही है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल एक व्यू। जनरली अगर अपन देखें तो जून जुलाई के अंदर ऑलमोस्ट एवरी ईयर इसके अंदर पॉजिटिव रिटर्न्स मिले हैं, और अगस्त सितंबर का जनरली नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। और अगर अपन बात करें इस साल 2020 की, तो मार्च ऑनवर्ड से इसके अंदर कंटिन्यू ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। और सिंस अगर आप इसकी लॉन्चिंग से देखें तो फर्स्ट मंथ इसका जो रिटर्न था अराउंड था 0.28 का, और टिल सितंबर तक अगर हम देखें तो 14.17 का इसने रिटर्न दिया है। वोलेटिलिटी की अगर अपन बात करें तो पिछले 4 महीने के अंदर इसकी अराउंड 10.91 की एनुअलाइज वोलेटिलिटी रही है इंडेक्स के अंदर। अब अगर अपन बात करें कोरिलेशन की, किसके इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ में, तो आप देखेंगे कैस्टर के साथ में जो कमोडिटी इंडेक्सेस का जो कोरिलेशन है वो अराउंड 0.29 का, और इसी तरह अगर अपन देखें चने का तो 0.50 के आसपास है। तो अगर अपन पूरी एक नजर मार के देखें तो मोटा मोटी ग्वार सीड और ग्वार कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं एक तरह से, ग्वार सीड ग्वारगम, जिसका हाईएस्ट मतलब कोरिलेशन रहा इंडेक्स के साथ में सोयाबीन का भी कहेंगे। सोयाबीन का भी अराउंड 0.76 के आसपास का कोरिलेशन है। तो ग्वार कॉम्प्लेक्स और सोयाबीन, इन दोनों का हाईएस्ट कोरिलेशन रहा है इंडेक्स के साथ में। ये इस ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो नियर मंथ फ्यूचर है उसके साथ में कितना कोरिलेशन रहता है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो इंडेक्स है नियर मंथ फ्यूचर के ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है, कहीं कहीं अपने को देखने को मिलेगा कुछ गैप अप है। तो अराउंड अपन देख सकते हैं कि 1-2 रुपए के गैप के साथ में जो इंडेक्स है वो नियर मंथ फीचर्स को फॉलो कर रहा है हर महीने। अब अगर अपने एग्रीडेक्स को फूड इन्फ्लेशन के साथ में अगर हेजिंग टूल के रूप में लेना चाहें तो देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई है, उसके साथ में इसका जो कोरिलेशन है वो अराउंड 0.47 के आसपास है। तो एक अगर फुल इन्फ्लेशन के साथ भी अगर अपने को इंडेक्स को हेज करना है तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% अपने पोजीशन को हम हेज करके चल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कॉमोडिटी इंडेक्सेस को विद जो अदर इंडेक्सेस हैं मतलब निफ्टी और सेंसेक्स के साथ में, तो हम देखते हैं कि निफ्टी के साथ में इसका कोरिलेशन बहुत कम है, नाम मात्र का है। मतलब देखें तो बाकी जो इंडेक्सेस हैं उनके साथ में इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। एक तरह का सेपरेट, ये एक तरह का कह सकते हैं कि अगर अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को एक डाइवर्सिफाई कह सकते हैं पोर्टफोलियो टाइप का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा इसके अंदर, जिसका उस मार्केट से मतलब कहीं भी लिंक नहीं है। इवन अपन निफ्टी देखें, सेंसेक्स देखें या सिल्वर गोल्ड, तो कहीं भी कोई कोरिलेशन नहीं है उस मार्केट के साथ में। एक सेपरेट आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी। अपन बात करें कि एग्री इंडेक्स के क्या बेनिफिट है ओवरऑल अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो सबसे पहले तो एक ये ओवरऑल आपको डायरेक्शन इंडिकेटर मिल जाता है एग्री कमोडिटीज का कि भाई कमोडिटी जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा एक आपको डाइवर्सिफाई बास्केट मिल जाता है क्योंकि ये मल्टीपल सेगमेंट की कमोडिटीज को मिला के बनाया गया इंडेक्स है, तो आपका जो पोर्टफोलियो वो एक डाइवर्सिफाई रहेगा। और इसके साथ में जो रिस्क जुड़ा हुआ है वो काफी एस्टिमेटेड रहता है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि इसका जो बाकी एसेट क्लास है इंडेक्सेस वगैरह है उनके साथ में बहुत कम को रिलेशन है। तो सपोज टू भी अगर दूसरे बाजार किसी अपनी जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि अपना जो पोर्टफोलियो एग्री इंडेक्स में रहेगा वो भी उसी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि ये उससे कहीं कोरिलेट नहीं करता है। तो हो सकता है कि अपने को यहाँ पे कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए साथ में उनके। और एक इफेक्टिव बेंचमार्किंग रहती है, और रियल टाइम आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया इनका जो परसेंटेज वेटेज है उसके हिसाब से कितना क्या रहता है डायरेक्शन बाजार में इसका। और इसको जो प्रोफेशनली मेंटेन कर रहे हैं वो जो एनएससी इंडेक्सेस हैं वही लोग इसको मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में एग्री इंडेक्स को भी।
अब अगर अपन बात करें, अगर जो भी लोग इसके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो ये है कि ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें किसी भी तरह की कोई डिलीवरी नहीं है। बाकी जो भी इनकी अंडरलाइन कमोडिटीज है हमारे इंसिडेंस प्लेटफॉर्म पे, वो सब की सब डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, और उनमें अगर सपोज टू बी कंपलसरी है तो आपको 100% डिलीवरी के अंदर जाना पड़ता है। और अगर वो इंटेंशन मैचिंग है, तो बोथ बायर और सेलर के अगर इंटेंशन मैच होते हैं तो डिलीवरी पॉसिबल रहती है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट 100% कैश सेटल्ड है, इसमें किसी भी तरह की कोई डिलीवरी नहीं है। तो अलग अलग मार्केट जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको शॉर्ट टर्म हेजिंग करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करनी है, या ओवरऑल डायरेक्शनल के बेसिस पे ट्रेड करना है, या इंडेक्स को आर्बिट्राज करना है अंडरलाइन कमोडिटीज के साथ में, या इंडेक्स टू इंडेक्स का कैलेंडर स्प्रेड करना हो, या ओवरऑल परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बेसिस के एनालिसिस करके अपना ट्रेड करना हो, तो वो सब लोग इसके अंदर इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट अगर स्पेसिफिकेशन अगर अपन देखें कि भाई क्या है इसका ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, तो हम देख सकते हैं इसकी जो एक लॉट है वो 500 यूनिट की है, और कॉन्ट्रैक्ट का जो मैकेनिज्म है वो क्या सेटल्ड है, और जो रुपीज आते हैं वो पर यूनिट शो होते हैं, और टिक साइज का 0.25 ऐसा रखा है हम लोगों ने। टाइमिंग वो जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज चलती है हमारी 9 to 9, वही है इसका भी। और एक्सपायरी डेट हर महीने की लास्ट जो भी ट्रेडिंग डे रहता है वो रहता है। जनरली फ्यूचर्स में जो हमारे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट है उनका 20 तारीख है, बट इसका क्या है, महीने का जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे रहता है वही इसका एक्सपायरी डेट है। और जो प्राइस लिमिट हम लोगों ने रखी है वो 4+2 यानी कि 6% का हायर साइड में रखा है हम लोगों ने। और 15 अगर अपन पोजिशन लिमिट की बात करें तो ओवरऑल 10,000 लॉट्स की पोजिशन लिमिट रहे, या 15% ऑफ टोटल ओई का फॉर ट्रेडिंग मेंबर। और क्लाइंटेल की अगर बात करें तो क्लाइंटेल हायर साइड में 5% ऑफ ओई या 1,000 लॉट्स के अंदर मैक्सिमम काम कर सकता है। और मार्जिन का जो स्ट्रक्चर है वो टाइम टू टाइम जो भी सेबी की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम लोग डिसाइड करके साइट के ऊपर हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो उसका सेटलमेंट आता है वो एक्सपायरी वाले दिन 4 से लेके 5 के बीच में जो भी वॉल्यूम वेटेज एवरेज रहता है प्राइस, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग इसका एफएस पे डिसाइड करते हैं। और मार्जिन का जैसे मैंने दिया 6% के आसपास का हम लोग मार्जिन इसमें रखा है हम लोगों ने इनिशियली। तो ये कमोडिटी इंडेक्सेस के ऊपर ओवरऑल मैंने आपको थोड़ा बताया। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो इस वेबिनार में, तो लास्ट में आप इस वेबिनार के आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्यूएनए टैब रहता है, उस क्यूएनए टैब पे आप क्लिक करके जो भी आपके सवाल रहेंगे इस वेबिनार से रिलेटेड, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा मैं वो आपको जो भी इस बाजार में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, तो इन्वेस्टर्स की कुछ गाइडलाइन बनाई हुई है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अगर हम इस बाजार में ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि भाई अपने को किन किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी एक्सचेंजेस और सेबी की तरफ से सर्कुलर्स वगैरह आते हैं वो हमें टाइम टू टाइम रीड करने चाहिए, ताकि हमें जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इस बाजार से रिलेटेड वो हमें मिलती रहे। जो भी हम ट्रेड करें वो एक्सचेंज रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही या मेंबर के साथ ही ट्रेड करें। और जब भी हम ट्रेड स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले अपनी जो केवाईसी है उसको अपडेट करना है, जिसके थ्रू हमें एक यूसीसी कोड मिलता है। और जो भी अपने ऑब्लिगेशंस है वो रिस्क डिस्क्लोजर जो स्टेटमेंट है उसके अंदर मेंशन रहते हैं, और हमें उसको देखते रहना चाहिए। और जो भी अपने ट्रेड होते हैं उसके जो बिल या कॉन्ट्रैक्ट नोट जो होते हैं, हर सेटलमेंट के बाद अपने को वो लेने का पूरा अधिकार है। और जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट नोट लेते हैं उसके अंदर जो भी अपने ट्रेड से रिलेटेड रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वो मेंबर क्या नाम है, मेंबर का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, जो भी हमने ऑर्डर डाला है उसका ऑर्डर से रिलेटेड सब डिटेल्स, कितनी क्या ट्रेड नंबर है, किस ट्रेड जो रेट हुआ है उस ट्रेड का रेट, साथ में किस क्वांटिटी में किया है, सब चीजें उसके अंदर मेंशन रहती है कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर। तो वो हमें देखना चाहिए, इंश्योर रहना चाहिए कि प्रॉपर डिटेलिंग मेंशन है या नहीं है। और अगर हम चाहें तो जो भी ट्रेड हमने किया है उसको क्रॉस चेक करने के लिए एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके जो ट्रेड वेरिफिकेशन का एक टैब रहता है उस पर क्लिक करके हम अपने ऑर्डर का नंबर, मतलब ट्रेड ऑर्डर नंबर डाल के वो चेक कर सकते हैं कि वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हुआ या नहीं हुआ।
प्लस अपने को टाइम टू टाइम जो भी एक्सचेंज की तरफ से इसका मार्जिन और M2M रहता है ऑब्लिगेशन है, वो हमें टाइमली पे फुलफिल करने चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई पेनल्टी के अंदर हम लोग नहीं आए। और हम लोगों को जो भी मतलब डब्बा ट्रेड वगैरह करते हैं उस टाइप के रिस्क से एसोसिएटेड सब के बारे में अवेयर रहना चाहिए। प्लस मेंबर के पास में जो भी हमारे ट्रांजेक्शन वगैरह जो भी होल्डिंग है मतलब फिजिकल साइड में, सब ट्रांजेक्शन के ओवरऑल आप चाहो तो एक स्टेटमेंट ले सकते हैं उनसे। और जो भी आप मेंबर को चेक वगैरह इशू करते हैं या ड्राफ्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें ब्रोकर का नाम एकदम क्लियर मेंशन रहना चाहिए, जैसा कि सेबी से उन लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उस वे के अंदर। और पीरियडिकली आप स्टेटमेंट जो भी आपके फंड और सिक्योरिटीज रहते हैं वो ब्रोकर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता है। और अगर सपोज में कुछ भी अगर आपको लगता है डिस्क्रिपेंसीज हैं तो आप अपने ब्रोकर को नोटिफाई करके उसमें रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अभी परमिट नहीं की गई है, और तो इस टाइप का जो फंड पार्ट करके उससे हमें को अवेयर न रहना है। और अपने को जो अनऑथराइज फंडिंग कह सकते हैं वो किसी भी तरह से सेटलमेंट गारंटी के मैकेनिज्म में नहीं आता है, तो उससे भी हमें को बचना चाहिए। अब अगर अपन बात करें कि भाई किन मतलब गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद में किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये आता है कि जो भी बाजार में अनऑथराइज्ड मेंबर्स हैं उनके थ्रू अपने को ट्रेड नहीं करना चाहिए। और जो भी रजिस्टर्ड ब्रोकर वगैरह रहते हैं उसकी लिस्ट एक्सचेंज की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, वहां से देख के अपन चेक कर सकते हैं कि जिस ब्रोकर के थ्रू अपन काम कर रहे हैं वो ऑथराइज है या नहीं है। किसी भी तरह का ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन अपने को नहीं करना चाहिए। और किसी भी तरीके का मतलब बाजार के अंदर जो एडवर्टाइज वगैरह मत आते हैं या टिप्स वगैरह जो शो करते हैं या अश्योर्ड रिटर्न्स के प्रॉमिस वादे करते हैं उनमें अपने को किसी भी तरह का मतलब नहीं आना चाहिए। जो भी कॉल है हम अपने बेसिस के ऊपर लें, रिसर्च करके लें, और तभी अपने को इस बाजार में ट्रेड करना चाहिए। और जब भी हम ट्रेड करें इस बाजार के अंदर तो मेंबर जो भी अपने को फॉर्म देता है उसके अंदर जो रिस्क डिस्क्लोजर वाला पार्ट है उसको प्रॉपर रीड करके ही अपन साइन करें और ट्रेड करें, ताकि अपने को पता रहे कि भाई इस ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या रिस्क अपने से जुड़ी हुई है। अगर उनको अपन ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि अपने को कम नुकसान लगे इस बाजार के अंदर, और अपना जो भी ट्रेड रहे वो प्रॉफिट की तरफ ही रहे। यानी कि सोच समझ के ही अपने को ट्रेड करना चाहिए। और किसी भी तरीके का अनसाइंड या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं देना चाहिए मेंबर की तरफ से। जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट मेंबर रिलीज करता है आपको वो प्रॉपर साइन हो और ओरिजिनल हो। और किसी भी तरह के मार्केट में जो भी रूमर्स रहते हैं उसका एक मतलब फॉलो या पार्ट नहीं बनना चाहिए अपने को। और कोशिश करनी चाहिए अपनी जो भी पोजीशन बने उसको अपन एक्यूमुलेट नहीं करें अपनी कैपेसिटी से बाहर, क्योंकि इसमें रिस्क काफी रहता है। तो ये अगर अपन अपने पोजीशंस को एक्यूमुलेट नहीं करेंगे अपनी कैपेसिटी बाहर तो वो रिस्क में नहीं रहेंगे अपन लोग। और किसी भी तरह के जो ये एनालिस्ट या एडवाइजर्स या एक्सपर्ट्स जो वादे करते हैं उनके अंदर अपने को नहीं आना चाहिए। जो भी ट्रेड करें अपने बेसिस के ऊपर करना चाहिए। और जो भी अपने फाइनेंशियल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उनको टाइम टू टाइम उनको ध्यान में रख के अपने को ट्रेड करना चाहिए हमें। और देखते रहना चाहिए अपने को कि अपन जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो विद इन पोजीशन लिमिट है या नहीं है, वो सब चीजें। और जो भी अपन बाजार में जो प्रेडिक्शंस रिपोर्ट वगैरह आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको भी अपन आधार नहीं मानना चाहिए। अपने बेसिस के ऊपर अपने को ट्रेड करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जो बाजार में डब्बा ट्रेडिंग आती है, डब्बा ट्रेडिंग बेसिकली मतलब क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, और किस तरीके से अपन उसको पहचान सकते हैं, उसके क्या फायदे फायदे तो नहीं कहूँगा, क्या नुकसान है बाजार के अंदर और क्या उसके अगेंस्ट लीगल प्रोविजंस बने हुए हैं, उसके ऊपर अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो डब्बा ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि एक्सचेंज के बाहर जो भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वो इलीगल है और उसी को हम लोग डब्बा ट्रेड बोलते हैं। एक तरह का वो फ्रॉड रहता है, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती उस ट्रेड की। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि पूरी तरह से इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई रेगुलेटर नहीं है, तो पूरी तरह से ये इलीगल है। और ये एक्सचेंज के बाहर ही होती है जनरली, मतलब एक्सचेंज से बाहर जो भी लोग रहते हैं वो एक्सचेंज के मेंबर नहीं रहते हैं, वही लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। और उस टाइप के टर्मिनल्स पे जो भी ट्रेड होता है वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे नहीं आता है, तो वो प्रॉपर इलीगल है। और
इसके अंदर जो भी मतलब ट्रेडिंग वगैरह होती है वो ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज के बाहर ही उनका सेटलमेंट होता है, एक्सचेंज से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। और वहां पे जो भी मतलब प्राइस का जो भी चल रहा है उसके एक्सचेंज मैकेनिज्म से किसी भी तरीके का कोई लिंक नहीं रहता है। तो अपने को मतलब बेसिकली वही था इसमें कि जो भी डब्बे पे ट्रेडर है अपने को उससे बचना है, क्योंकि वो पूरी तरह से इलीगल है। और देख सकते हैं कि भाई डब्बा ट्रेड और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के पे जो ट्रेड होते हैं उसमें क्या डिफरेंशिएट करता है। तो एक्सचेंज की प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रेड हो रहा है वो एक्सचेंज, वो रेगुलेटेड एक्सचेंज के थ्रू होता है। जबकि जो डब्बे में ट्रेड हो रहा है वो ऑपरेटर सिर्फ अपनी, कह सकते हैं कि बुक्स के अंदर ही मेंटेन करता है उसका सारा रिकॉर्ड, और वो उसके खुद के ही टर्मिनल पे रहता है, मतलब एक्सचेंज के पास में कहीं नहीं आता। एक्सचेंज के पार्ट पे जो भी ट्रेड होता है वो काफी ट्रांसपेरेंट रहता है, डिलीवरी बेस्ड रहता है, सेटलमेंट का एक मैकेनिज्म रहता है। जबकि जो डब्बा ट्रेडर के वो पूरी तरह से जो उसको ऑपरेट कर रहा है, पूरा साइकिल है या कह सकते हैं कि पूरा सेटलमेंट का जो प्रोसीजर है उसको वही कंट्रोल करता है। एक्सचेंज में जो भी ट्रेड होता है उसका डेली एक मार्क टू मार्क के बेसिस पे सेटलमेंट होता है, ठीक है। जबकि जो डब्बा में ट्रेड करता है वहां पे किसी भी तरह का कोई एम टू एम का सेटलमेंट नहीं होता है। अगर क्लाइंट के फेवर में पोजीशन है या अगेंस्ट है, ना होता उनसे कोई मार्जिन वगैरह वो लो लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि वो अपने हिसाब से उस बाजार को वो मूव कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे जो भी ट्रेड रहता है वो एकदम क्लियर रहता है, सामने रहता है, उसका डेली बेसिस के ऊपर एक आपको जो भी सेटलमेंट रहता है एम टू एम के बेसिस के ऊपर, अगर आपको प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, अगर नुकसान है तो वो डेबिट की एंट्री आती है। और जो भी ट्रेड होता है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे उसका मेंबर एक डिटेल कॉन्टेक्ट नोट जनरेट करके आपको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर पूरी ट्रेड से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है। जबकि जो डब्बा ट्रेडिंग रहती है उसमें कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, ना किसी तरह की कोई ऑथराइज बिलिंग रहती है। और एक्सचेंज की ट्रेड, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रेड होता है सपोज टू भी, अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसका एक मैकेनिज्म आर्बिट्रेशन के थ्रू आप लोग जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। जबकि डब्बा ट्रेडिंग के अंदर इस टाइप का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है अपने को मतलब इश्यूज को रिड्रेस करने का। और एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रेड होता है उसका गारंटी का सेटलमेंट रहता है, जबकि वहां पे जो भी ट्रेड करें उसकी गारंटी का कोई सेटलमेंट का भी नहीं है। और ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज टू भी अगर किसी क्लाइंट का कोई अगर ग्रीवेंस है तो उसको एड्रेस करने के लिए एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे एक इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल बनी हुई है, जिसके ऊपर जाके आप एक प्रोसीजर के तहत जो भी आपके इश्यूज हैं या जो भी क्लेम वगैरह बन रहा है आपका, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट सपोर्ट के साथ में आप मतलब कर सकते हैं वहाँ पे फाइल। और एक आर्बिट्रेशन जो टीम रहती है वो प्रॉपर वे के अंदर उसको हैंडल करती है, और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आप वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं अपने प्रूफ, उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन लेके वो अपने फैसले लेती है। तो देख सकते हैं कि एक्सचेंज के थ्रू जो भी ट्रेड करते हैं उसके लिए प्रॉपर एक वे बना हुआ है हर इश्यूज को रिड्रेस करने का। तो ये भी एक बेनिफिट है एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करने का। तो ये एक मेरा ओवरऑल पूरा प्रेजेंटेशन था कम्युनिटी इंडेक्सेस को लेकर, और साथ में जो भी इन्वेस्टर इस बाजार के अंदर ट्रेड कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या जानकारी के साथ वो उस बाजार में ट्रेड करें। तो अब अगर आपके कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझसे लेफ्ट हैंड साइड में जो एक क्यू एन ए टैब है वहाँ पे क्लिक करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल हो अगर आपका। आपकी कोई भी क्यूरी हो कमोडिटी इंडेक्सेस को लेकर, और या किसी भी तरह की वो जो जानकारी जो भी मैंने पीपीटी में आपको बताई है उससे रिलेटेड अगर कोई भी कुछ भी पूछना हो आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्यू एन ए के नाम से एक टैब है, उस पर क्लिक करके नोट राइट डाउन करके पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा।
किसी भी पार्टिसिपेंट्स का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं Q&A टैब के थ्रू, अदरवाइज फिर हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करना चाहेंगे। तो 2 मिनट का टाइम और लेते हैं, अगर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं Q&A टैब के थ्रू, अदरवाइज फिर अपन सेशन को 2 मिनट बाद में क्लोज करेंगे। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी किसी का कोई भी सवाल नहीं आया है, तो मैं सेशन को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा और आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने टाइम निकाल कर इस सेशन को अटेंड किया। और साथ में सीपी की तरफ से नीतीश जी को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने अपना टाइम निकाल के हमें सीपी से रिलेटेड और इस बाजार से रिलेटेड जो भी जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला के अंदर हमारे इस वीक के अंदर और भी वेबिनार रहेंगे जिसके अंदर हमने अलग अलग टॉपिक चूज किए हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि उन वेबिनार्स को भी आप अटेंड करें और अधिक से अधिक जानकारी लेके इस बाजार के अंदर आप पार्टिसिपेट करें। सो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। Thank you, Sanjeev ji. Thank you. थैंक यू सर।